Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sitala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall complete the second part of the last chapter of 5th English, that is who will be Ningto. Let us complete the exercise of this chapter. First of all, we'll start with the question answer. Reading is fun. Name the place in Manipur where the Ningdo and Lema ruled. What was the name of? If you know the answer, you can type it in the chat box. Here, the correct answer is Kanglepa was the place where in the Manipur where the Ningto and Lema ruled. Why did the people of Kangle Park love their king and queen? The people of Kangle Park loved their king and queen because they loved them very much and always wanted to see them happy. लोग उनको इतना क्यों चाहते थे? क्योंकि राजा भी जो है अपनी प्रजा को खूब चाहते थे और उनको खुश देखना चाहता था. थर्ड क्वेश्चन, why did the Ningdo want to choose a future king? The Ningdo wanted to choose a future king because he grew old. ये रूल है संसार का कि जो है आपको अपना उत्तराधिकारी चुनना होता है. Next question. How did the king want to select the future king? The king wanted to select the future king by holding a contest. He wanted to see who was worthy of becoming a good ruler. अब उसको ये देखना था, उसने कॉन्टेस्ट एक ऑर्गेनाइज किया कि उसमें जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम लोग किंग बनाएंगे. ऐसा नहीं है कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसी को हम लोग थंगी निंगदो बना देंगे. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जो नेक्स्ट युवराज जो होगा यानी जो फ्यूचर किंग होगा वो गुड रूलर होना चाहिए. What kind of child was Santobi? Santobi was a lovely child, soft and beautiful inside. She was a daughter of King Ningdo. Have you ever seen an animal or a bird in pain? What did you do? Yes, of course, all of you have seen that. Once I saw a stray dog coming under a running car. Both of his hind legs got bruised. The car driver did not pay attention, but I went near the injured dog, brought him in my veranda and gave him first aid. Only after then he stopped crying. देखो, जो गली के कुत्ते होते हैं ना वो एक कार के अंदर आते हैं. अब उसके जो हिंड लेग्स जो है, बोथ हिंड लेग्स यानी जो उनके पांव जो है उसमें जो है क्या हो गया, ब्रूज हो गया है. अब कार ड्राइवर ने तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है हमारे वरंडा में लाकर जो है उसको फर्स्ट एड दिया. उसके बाद वो अपनी क्राइंग यानी रोना बंद कर दिया. Let us listen and talk. Where is Manipur on the map of India? I hope that you all know that the location of Manipur on the map of India. But let us see here. See, these all are seven sisters, means northeast of India, and this is Manipur. You can see this is Manipur. This green part is Manipur. The capital of Manipur is Imphal. Come to the next question. What language do the people of Manipur speak? Obviously, Assamese, Manipuri, and Mizo. The Manipuri is the correct answer. Who do you think should have been made the future king? Sanjova, the one who jumped through the tree. Sanaima, the one who jumped over the tree. Santoba, the one who uprooted the tree. Why do you think so? देखो, तीनों में से कौन राजा? एक तो जिसने जो है भाला मारा और उसके अंदर से निकल गया, दूसरा जो है उसने वो ट्री के ऊपर से जंप कर लिया और तीसरा जो है उसको पूरा उखाड़ के लेके आ गया. किसको राजा बनना चाहिए? Who was made the future queen and why? Of course, from the lesson we can see the Santobi will be the future king, and why? Let us see. No one should be made the future king. Why? Because they only believe in showing their strength, which is not always good. देखो, हर बार स्ट्रेंथ दिखाना जो है वो अच्छी चीज नहीं होता है. कभी कभी दिमाग से भी काम लेना पड़ता है, प्यार से भी काम लेना पड़ता है. A future king should be judicious and considerate. Means जो फ्यूचर किंग जो है वो जुडिशियस भी होना चाहिए, कंसीडरेट मतलब उसको अपना विवेक भी होना चाहिए किसी भी चीज का डिसीजन वगैरह लेने के लिए. Santobi was made the future queen because she had all the qualities of a good ruler. She did not believe in hurting anyone, not even trees. अब संतोबी जो है उसको फ्यूचर किंग बनाना क्यों? क्योंकि उसके पास सारी क्वालिटीज थी गुड रूलर होने की. देखो, युद्ध तो जो है वो कभी कभार हो जाते हैं और कभी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन
प्रजा के साथ तो पूरी जिंदगी रहना ही है, चाहे युद्ध हो ना हो, उनके साथ तो रहना ही है। तो उसने क्या किया, शी डिड नॉट बिलीव इन हर्टिंग एनीवन, उसने वो जो है किसी को हर्ट करने में मानती थी नहीं, इवन ट्रीज को भी वो हर्ट करना चाहती थी नहीं। नाउ वर्ड बिल्डिंग, say aloud the following names in your mother tongue. These are in Manipuri. The word is Ningdo. In English, we'll call it king. Lema. Lema means, in English, it is queen. Mia means the people of Kangle Park. Hongnam. This is banyan tree. You can also type it in the chat box. What do you call these words, king, queen, people, and banyan tree in your mother tongue? You can. I would be very happy to see your answers. Now, write the meaning of the following in English. See, these are all Manipuri words, and we will write the meaning of these words in English. Tungi Ningto means future king. Thuro Thuro, that is bravo bravo. Fazei Fazei, that is wonderful wonderful. Chagol Thobanopa, such a fine horseman. So these are the word in English. Now, fun with sound words. Some interesting words sound like the noises for which they stand. You use a different tone of voice when you say these words. The voice becomes louder and more forceful. For example, zoom went the car. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, तो उस वर्ड के अंदर जो हम सेंटेंस यूज करने वाले हैं, वो सेंटेंस की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कैसे? जैसे अगर कोई कार जा रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, जूम वेंट द कार, मतलब जूम करके चली गई। बैंग वेंट द डोर, मतलब जो दरवाजा हम लोग जोर से उसको स्लैम्ड करते हैं, फोर्सफुली धक्का देते हैं, तो क्या करते हैं, शट करते हैं, तो क्या होगा, बैंग वेंट द डोर। जो बैंग है वो वहां पर आवाज आती है। फ्लिप पॉप, फ्लिप्टी फ्लॉप, यानी कोई भी चीज को बार बार फ्लिप किया जाता है तो उसको फ्लिप पॉप हम लोग कहते हैं कि ये बार बार जो है उसको पलट रहा है। लाइक दिस, say the following and write what would make these sounds or action. क्लिक, क्लिक की आवाज ज्यादातर हम लोग कहाँ पर सुनते हैं? आप सभी ने आज के जमाने में, आज का जमाना वैसे इतना फास्ट हो गया है, आप सभी को पता है क्लिक की आवाज हम लोग कहाँ सुनेंगे? कैमरा में सुनते हैं। कैमरा। चिर्प, इट इज अ साउंड ऑफ बर्ड्स, बर्ड। विस्पर, विस्पर मीन्स किसी के कान में कुछ कहना, दैट इज टॉकिंग इन अ लो वॉइस। ब्राउ, इट इज सेड व्हेन समवन इज डूइंग वेल, अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको ब्रावो ब्रावो कहते हैं, शाबाश शाबाश जिसको हम लोग कहते हैं। ओ, इट इज सेड टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन, अगर कुछ कोई आपको सरप्राइज कर रहा है तब भी आप ओ, ये क्या कर दिया। तो वैसे भी हम लोग कहते हैं, पेन में भी कहते हैं, अगर कोई चीज लग जाती है, ओ मुझे ये लग गया है, इस तरह से ओ का यूज होता है। आ, इट इज सेड टू एक्सप्रेस प्लेजर, मतलब किसी चीज में जब हमें आनंद आ रहा है तब उसके लिए हम लोग आ शब्द का यूज करते हैं। हुर्रा, इट इज सेड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, अगर किसी चीज में हम लोग जीत जाते तो हिप हिप हुर्रे, हुर्रा, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। अलास, इट इज सेड टू एक्सप्रेस सैडनेस, जब भी कोई इंसान जो है अपना दुख दिखाना चाहता है और किसी चीज को सुनकर ऐसा लगता है कि ये बहुत खराब हुआ है, तब वो अलास वर्ड का यूज करता है। वंडरफुल, इट इज सेड टू एक्सप्रेस प्लेजर और हैप्पीनेस। वंडरफुल वर्ड है, उसका यूज क्यों होता है, जब आपको प्लेजर या आप आनंद में हो, वो चीज दिखाने के लिए होता। हाय, हाय इज यूज टू greet someone. We are always using hi, how are you, like that. Ho, ho means it is said to attract someone's attention. अगर कोई जा रहा है, ho, can you hear me? Like that we use. Actually, this is a typical Indian word. Hop away means jumping away. It is a sound produced at the time of jumping. जब jump हम लोग करते हैं उस समय पे ये जो use होता है। Language use. Dear students, if you feel this video is useful to you, please do like and subscribe our channel. Read the lesson carefully and put a circle around all the action words with ed at the end. Then write them in one column and their present form in the another column. One is done for you. See, this admit is an action word, and this is ed form of this action word, that is admitted. So last में हमने ed ऐड किया. So
आपको जो है लेसन में से इसको फाइंड आउट करना है कि वैसे कौन कौन से वर्ड है जो ईडी फॉर्म वाले हैं, और उसको यहाँ पर उसका प्रेजेंट फॉर्म आपको लिखना है। एक्चुअली दिस इज ईडी फॉर्म इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड, सो दैट यू हैव टू राइट हियर। सो इसको यहाँ पर आपको लिखना है, अपने आप ही ये काम करना है। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सी हम लोग यहाँ पर जो वर्ड यूज करने वाले हैं वो सारे पास्ट फॉर्म है, यानी ईडी वाले ही वर्ड यूज करने वाले। सभी वर्ड्स ईडी वाले नहीं होते, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इरेगुलर फॉर्म बोलते हैं। कुछ वर्ब ऐसे रहते हैं जो इरेगुलर रहते हैं, यानी उसका फॉर्म ही चेंज हो जाता है, उसमें ईडी नहीं लगता है, वो यहाँ पर देखेंगे। लेट अस कंप्लीट द स्टोरी। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल। देखो गॉब्लिन क्या होता है पता है? देखो इसको गॉब्लिन बोलते हैं, कैसा जानवर है जो घातक होता है उसको गॉब्लिन कहते हैं। अगर कोई स्टोरीज कभी भी हम लोग कहते हैं ना किसी को, तो स्टोरीज जो है ऑलवेज पास्ट फॉर्म में ही कही जाती है। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग जितने भी यहाँ वर्ब्स दिए हैं, ये ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन सभी का हम लोग जो है कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पास्ट फॉर्म, यानी ईडी वाला फॉर्म ही हम लोग यूज करने वाले हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल। वन डे ही, see this is an irregular verb, meet, met and meets। यहाँ पर कोई ईडी वाला फॉर्म है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए कुछ इरेगुलर फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डेली यूज करेंगे तभी वो हमें समझ में आएंगे। सो वी विल यूज met an old man wandering in the forest। Immediately cruel leapt on to the old man's shoulder। देखो ये जो है उसने जैसे ओल्ड मैन को देखा जंगल में, उसके कंधे पे बैठ गया ये, और उसने कहा, क्या कहा? एंड ऑर्डर्ड ordered him, let's go, move fast, चलो जल्दी चलो। The frightened old man, this is obey, obeys and obeyed। So this is a present form, this we will use for third person singular, and this will use for the past one, that is ed form of obey, that is obeyed। जो वो जो है the nasty goblin का जो है वो डर गया ओल्ड मैन, और उसने उसने जो कहा गॉबलिन ने, वो जो है वो बूढ़े इंसान ने मान लिया। एंड वॉकड ऑन, और वो चलना शुरू किया। एज दे मूव्स एंड मूव्ड ऑन, ही नोटिस द गॉब्लिन्स फीट वर वेरी। अब उसने नोटिस क्या किया कि गॉब्लिन्स फीट वर वेरी टेंडर, यानी उसकी फीट जो थे, आप यहाँ पर देखो कैसे ठीक नहीं थे, पूरे क्या है टेंडर हो गए थे। तो उसने क्या किया? ओल्ड मैन आस्क्ड क्रूअल, सर हाउ आर योर फीट सो सॉफ्ट एंड टेंडर? तुम्हारे फीट जो है इतने सॉफ्ट और टेंडर क्यों है? क्रूअल रिप्लाइड, I have taken a vow that I will not touch the ground with my feet till I wash them। मतलब इसने एक कसम खाई थी, एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक जो है अपने पांव धोऊंगा नहीं, तब तक उसको ग्राउंड के ऊपर रखूंगा नहीं। They soon came to a pool, एक पूल के पास आ गए। The goblin instructed the old man to wait for him while he entered the pool। गॉबलिन ने क्या कहा? वहां से उतर गया, जब तक वो पानी में जा रहा था तब तक उसने कहा, इंस्ट्रक्ट किया किसको? तो ओल्ड मैन था कि तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूं। द ओल्ड मैन थॉट, दिस इज एन इरेगुलर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थिंक। थिंक का जो है थॉट हो गया है। द ओल्ड मैन थॉट टू हिमसेल्फ, नाउ दैट द गॉब्लिन हैज वेट हिज फीट ही डज नॉट नीड मी। अब उसने जो प्रतिज्ञा ली थी, मतलब जब तक अपने पाँव जो धो नहीं लेता तब तक जो है तुम्हें यहीं रुकना है। अब उसने तो पाँव अपने गीले कर लिए, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ओल्ड मैन को क्या करना चाहिए? लेट मी रन फॉर माई लाइफ और ही विल श्योरली ईट मी अप। सो ही रैन ऑफ। अब उसने क्या कहा, क्या सोचा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो मुझे खा जाएगा। ओके, आई होप दैट you have got the story. Now the third one, make a list of action words from the story। Live, lived, order, again ed form, these are normal ed words। This is ordered, ed, walk, that is ed with walked, move, that is with d, moved, this is instruct with ed form, instructed। सी ये जो है ये उसका प्रेजेंट फॉर्म है, जिसको हम लोग वी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये जो है V2 है, वर्ब 2, यानी पास्ट फॉर्म है। किसका पास्ट फॉर्म है? ऑर्डर का पास्ट फॉर्म जो है वो क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा।
नाउ इररेगुलर एक्शन वर्ड्स, मीट मैट, इसमें ईडी नहीं लगता है। कम केम, थिंक थॉट, run ran, leap left. See, these are the words we can taken from the story. तो ये जो irregular words है, इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि जब जब जरूरत होगी तब हम इनका यूज करेंगे. That is the only easiest way to remember these. Otherwise, these words are very simple. We have to just add ed at the end of the verb. Now, let us see the last one. Previous project. Find out stories about other great people's lives and their childhood and write these in your notebook. Collect at least 2 such stories and share them with your friends. You could think of famous scientists, religious people, freedom fighters, brave children, astronaut and artists. यहाँ पर आपको क्या करनी है कि आपको जो है एक स्टोरी ढूंढनी है, कलेक्ट करनी है, चाहे न्यूज़पेपर हो, गूगल कर लीजिए, अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर लीजिए, और वो स्टोरीज एक पेज की आपको लिखनी है. और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग ले सकते हैं, वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, रिलीजियस पीपल भी हो सकते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, कुछ ब्रेव चिल्ड्रन जिनको जो ब्रेवरी अवार्ड्स मिलता है वो भी हो सकते हैं. यू कैन थिंक ऑफ आल्सो एस्ट्रोनॉट्स जो क्या कहते हैं कि आसमान में मतलब जो है स्पेस में जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स भी हो सकते हैं, और आर्टिस्ट भी कोई हो सकता है. Okay, now let us see what you have to write in your notebook. So let us find it out. Let me tell you the new word. Yes, these are the question marks, question answers. Okay, from here we need to start. Let me take pen. Yes, this full page you need to write. Full page. ये पूरा page आपको लिखना है. This one also the full page you will write. Okay, ये पूरा page आपको लिखना है. ये तीनों questions आपको लिखना है. ये पूरा भी आपको लिखना है. वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ, एक्चुअली ये आप नहीं दिखा सकते हैं ना, क्योंकि मैप ड्रॉ करना मुश्किल होगा, तो इसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे. ओके, इसको ड्रॉ करेंगे नहीं. इसके अंदर जो है ये हेडिंग डाल देंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लेंगे, फर्स्ट वाले को हटा देंगे. ओके, टिक कर दिया आंसर. आफ्टर दैट ये वाला पूरा पेज आपको लिखना है, पूरा पेज यहाँ तक लिखेंगे आप. उसके बाद ये जो वर्ड बिल्डिंग है, ये वाली ड्राइंग नहीं बनानी है, ये वाली ड्राइंग भी नहीं बनानी है, और ये जो पूरा आपको जो है ये सारा ये पूरा लिखना. ये वाला भी आपको पूरा लिखना है. दिस वन ऑल्सो यू विल राइट द फुल. इसको हटा दीजिए, ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है. ये वाला भी आप लोग पूरा पेज लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद लैंग्वेज यूज, ये वाला भी पूरा पेज आप लोग जो है, मैंने कहा था डू इट योरसेल्फ यानी टेक्स्ट बुक से आपको फाइंड आउट करना है. तो वर्ड्स एंडिंग विद ईडी. हाँ, ये स्टोरी आपको पूरी लिखनी है, इनको हम लोग हटा देंगे, ये ड्राइंग हमको बनानी है नहीं. ये सारे आपको लिखने हैं. उसके बाद ये वाला भी आपको पूरा पेज लिखना है, ये ड्राइंग हटा देंगे हम लोग, आपको नहीं लिखनी है. उसके बाद ये वाला भी आप लोग पूरा पेज लिखेंगे, वर्ड है विथ एक्शन वर्ड्स विथ ईडी एंड इरेगुलर एक्शन वर्ड्स. और ये भी आपको लिखना है. इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए आप, हाँ, ये सभी नहीं लिखना है, किसी एक के बारे में एक पेज आपको लिखना है. Okay, thank you very much. I hope that you have enjoyed this video. Please stay with us. Thank you.